people can also understand. Guys, उसके पहले वाली recordings you will have to really see. Functions ऐसे भी हैं which are really important to know. Logical functions, I know that you know the logics if and else, sorry, if not or and. एक recap दे देता हूँ so the new people can also understand. Guys, उसके पहले वाली recordings you will have to really see. अगर कभी भी कोई doubt हो तो definitely you can pick to our mentors. Definitely we'll discuss. We'll give you the doubt session. Is that okay with new people? And how many of you are, by the way, new? Can you raise your hand so that I can see? Okay, so Mahalakshmi is new. Kedar is new. Anish Kumar Singh. Anish, I'm correcting your name. Like I'm pronouncing your name correctly, right? Yes. So these people are new. That's fine. Okay. ठीक है, तो हम आज इस बेसिक फंक्शन से चलते हैं। ये वापस से एक रिकैप दे रहा हूं मैं कि ये चार कौन है। ये वो चार नहीं है जो हम लोग कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। ये वो चार हैं जिनके लॉजिक्स अपनी अपनी जगह डिफरेंट है। केदार, यू कैन पुट डाउन योर हैंड। ओके, नाउ देयर आर फोर लॉजिकल फंक्शंस एज ऑफ नाउ, लाइक मेनली की बात कर रहे हैं हम। इफ, एंड, और, नॉट। Okay, if checks any condition is true or not. Just check the true one. It doesn't talk about the false one. Oh, you are also, who's there? Vibhuti. All right, Vibhuti, Bhushan, Dora, you are also new one. Guys, again, welcome back. If वो function है जो check करेगा, let's say your age is at 18 और मैं ये कह रहा हूँ कि जो 18 और 18 के ऊपर हैं, that those are adult. So usually F क्या check करता है? True. Normally without F, let's say if I'm checking, यहाँ पर हो गया एक adult age, right? Normally this is my age. For an example, this is my age. मुझे ये देखना है मैं एडल्ट हूं कि नहीं हूं। एक एडल्ट क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एज को रखा है। नॉर्मली इफ आई एम चेकिंग इक्वल टू दिस ग्रेटर देन दिस, तो ये तो ट्रू बोलेगा ही बोलेगा। बट इंस्टेड ऑफ ट्रू आई जस्ट वांट टू सी कि बंदा एडल्ट है या माइनर है, राइट? सो इस जगह पे यू डू यूज इफ फंक्शन। अगर ये दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है, तो पहला बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू, दूसरा बोलता है वैल्यू इफ फॉल्स। फर्स्ट वन ऑप्शन इज ट्रू। अगर ट्रू है तो यू कैन यूज एनी अदर टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ दैट ट्रू एंड फॉल्स। सो इन्वर्टेड कॉमा आपको देना पड़ेगा बिकॉज हम इंग्लिश वर्ड लिखने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग इन दिस वर्ल्ड, इन डेटा वर्ल्ड। सो आई एम सेइंग लेट्स से आई एम एन एडल्ट, ऑलराइट, ये हमने लॉक किया। अब फॉल्स वाली कंडीशन, लेट्स से somebody is not greater than 18, उस केस में क्या होगा? दैट पर्सन विल बी लेट्स से टीनेजर। परफेक्ट, इतना करना है एंड देयर वी गो। लेट्स से इफ आई एम 17 years old, then I'm a teenager. Understood? Everybody again? Is my voice loud and clear to all? Yes, sir. Perfect. ठीक है, अब ये तो हो गया। अब यहां पे क्या है, चलो इफ वाला लॉजिक हम समझ गए। एंड विल चेक द ऑल कंडीशंस आर ट्रू और नॉट, all the logics are true or not. Let's say four people are there, four people went out there for a smoke, let's say normally. So three said no, we didn't smoke. The one said we did, like I did smoke, right? अब हो सकता है वो सच हो बट ये false माना जाएगा because three people are saying that we did not, right? But if I'm using or function, let's say one person said that I did smoke and three did not. All did smoke. ठीक है, अगर एक भी बोल रहा है तो बाकी सबने क्या होगा? बाकी सब दूध के धुले हुए नहीं है। अंडरस्टूड? यस, नो? Yes, sir. इनके बीच का डिफरेंस बताता हूं पहले। डिफरेंस बिटवीन और एंड इन एक्सेल। देखो, मीनिंग all condition must be true when you talk about end function. At least one condition must be true if you want true as an output. Returns true when every condition is satisfied in end. Any one condition is satisfied. Okay, so it will be fail even one condition is fail. यहाँ पे all condition will be fail, then only you will get the fail. Let me show you. Let's say passing marks is 7 and Harry got so you have to use or over here. और मैंने यूज किया, इसने बोला लॉजिक, पहला लॉजिक दो। आई एम सेइंग साइंस इज ग्रेटर देन पासिंग मार्क्स। नो? हेलो? Yes, sir. ठीक है, Yeah. D5 में 63 है। I mean wherever 63 is, I'm just speaking 63. आपको D5 दिख रहा होगा because you understand, like you see the same word over there. Because Excel will not understand where is my 63. वो बस इसलिए मैंने आपसे, मुझे 63 दिखाई दे रहा है, you guys can see D5 because Excel को भी D5 दिखाई देगा। Understood? वो बस एक सेल आईडी है ना? Yes, sir. अब जब मुझे पता है कि पहला स्कोर इज नॉट पॉसिबल दैट ए ग्रेटर देन 70 हो,
Is it possible? क्या 63 साइंस का स्कोर पासिंग मार्क्स से ज्यादा है? No. हाँ? नहीं सर, नहीं है ना? तो हम दूसरा देखते हैं, क्या मैथ का स्कोर इज ग्रेटर देन 70? बोलो। नहीं। नहीं है। परफेक्ट। यानी अगर मैं इन दोनों को सिर्फ चेक करूं, सो इट विल गिव मी ऑब्वियसली फॉल्स। दोनों गलत दिए, राइट? लेट मी गिव द थर्ड लॉ, दैट इंग्लिश स्कोर क्या ग्रेटर देन 70 है? इज इंग्लिश स्कोर ग्रेटर देन 70? यस सर। यस। क्योंकि 73 तो 70 से बड़ा होता है ना? नो? यस यस। And then I'm checking the social as well. Absolutely, this is 92. तो ये तो है ही है। अब ट्रू पहले फॉल्स आया था क्योंकि दोनों लॉजिक फॉल्स थे, झूठे थे, बेबुनियाद थे, राइट? नाउ आई डू हैव अ रीजन कि मैं दो सब्जेक्ट में तो पास हूं। अरे डोंट वरी, यू आर पास इन एवरी सब्जेक्ट देन। आप ये सोच लो, जस्ट इमेजिन दैट और इज अ ब्राइब टेकर, सिंपल, एंड इज ब्रूटल ऑनेस्ट। इंस्टेड ऑफ दिस, लेट्स से, इंस्टेड ऑफ और, इफ आई एम टाइपिंग एंड ओवर हियर, तो मैं पूरी तरह फॉल्स हूं, सॉरी, एंड। नाउ लुक एट दैट, फॉल्स हो गया क्योंकि एंड बोलता है कि या तो सारे लॉजिक सही दो, देन ओनली आई विल गिव यू द ट्रू। अंडरस्टूड? Yes. यस सर। ना, इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं इफ और को यूज करके। लेट्स से आई एम यूजिंग इफ फर्स्ट फंक्शन क्योंकि मुझे पास से फेल लिखना है, देन आई एम यूजिंग और। ठीक है, एक सेकंड देना, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू सी दिस। अगर आपको फंक्शन यहां ना दिखाई दे, सो आपको यहां पे भी दिखाई दे सकता है, राइट? लेट्स से इफ आई एम क्लिकिंग ओवर हियर, तो आई कैन टाइप द फंक्शन हियर टू। इफ दिख रहा है, और कैन यू सी दिस? यस सर। My God, come on, fix your mic, विभूति। नो बहुत सर, देर माय से- माइक इज, मेरा माइक अभी ठीक। जिसका भी था, प्लीज मेक श्योर अगर कूलर फैन वैन को चला रखा है, माइक को लिप्स से थोड़ा दूर रखो, देन ओनली आई विल बी एबल टू हियर यू। एनीवेज, सो आई एम सेइंग साइंस स्कोर इज ग्रेटर देन 70, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। देन आई एम सेइंग, ऊपर देखो, यहां दिख रहा है ना, यू आर इनकरेक्ट, इंग्लिश स्कोर इज ग्रेटर देन 70। ओह माय बैड। चलो मान लेते हैं कि यहां तो ठीक है, गुड टू गो। देन फोर्थ लॉजिक इज आल्सो ग्रेटर देन 70। अब यहां पे आप ब्रैकेट क्लोज कर देते हो बिकॉज माय इंटरनल रेड ब्रैकेट इज गेटिंग क्लोज्ड, फाइन। यहां दिए तो सारे लॉजिक आ गए, अंडरस्टूड एवरीवन? नहीं, Yes. ये हाँ, सारे सर। लॉजिक आ गए। अब मैं कॉमा लगा के यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तो ये मेरे को बोलता है वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। सो जैसे मैंने एडल्ट लिखा था वैसे ही मैं यहाँ पे पास लिख सकता हूँ। आई कैन राइट पास, राइट एवरीवन? और अगर कोई पास नहीं है तो क्या हो सकता है? फेल? यस, नो? Guys, can you please confirm? If somebody is not passed, then what? Fail. So that's what we are going to get over here. अब और क्या बोलता है? That he is passed in two subjects, then he is passed. Look at that. One guy is fail. Why? Because all the numbers are below than 70. Can you see? Yes. No, yes. और इन एंड का लॉजिक समझ में आया? समझ गया। All of you? जी सर। Perfect. Then last में understand करते हैं। अगर देखो, if I'm typing over here and instead of or, if I'm typing and, look at that. He's failed. And even everybody's failed. Illiterate. Because and is brutal honest. वो बोलता है कि सारे लॉजिक सही होंगे तभी सही होंगे। Understood? ठीक है? All sorted? Not is just a funny function. आप बोलोगे यहाँ पे true. Everybody, I hope you understand. Equal to, let's say I'm using not function. I'm picking true. ये बोलेगा false. आप बोलोगे false, it will say true. Can you see that? ये थोड़ा opposite चलता है. Everybody understood? But why is it used for? Used. Usually Yes, I sir. do not use it, and there are many people who do not use it so frequent. But there are many people, let's say they just want to keep the opposite like statement. I mean usage इसका frequent basis पे नहीं है. I mean जब आपको थोड़ा reverse mode पे चलना हो, आपको logic ऐसा दिखाना हो कि let's say use of not function. Example में मुझे कभी जरूरत पड़ी नहीं, so इतना examples याद नहीं है. Use not function in Excel. The not function in Excel is used to reverse a logical function. I mean इसका ऐसा कोई frequent use नहीं है. If you say on, it will say off. If you say off, it will say on. Simple. If a condition is true, not changes into false. But in real life, like let's say normally 70 is greater than 50. So Excel give you the true, correct?
right? Yes. 70 is greater than 50. No, it flips to the false. Simple. Let's say employee eligibility criteria आप check कर रहे हो. Employees with the age less than 18 are not eligible. Correct? है ना? Yes. या अब यहाँ पे हमने क्या किया? If लिया, not लिया, then we are saying किसी A2 में अगर है कि less than 18 रहो और eligible और not eligible. So यहाँ पे 25 है, वो eligible है और 16 not eligible है. Simple है, हमने condition दे दी कि somebody is less than not less than 18. तो अब यहाँ पे not less than 18 यहाँ तो 25 है, which means he is eligible, and 16 is not eligible. So there are different functions, different expectations. Suppose a company rejects employee who are from the sales department and have attendance below 70%. है ना? Right? Right? कितना? Yes. Company rejects the employees who are from sales department and attendance below 70%. तो यहाँ आपने नोट लगाया, एंड लगाया, एंड में सारी बात ऑनेस्टी के साथ होगी, तो एंड क्या करेगा? उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है सबको. करेक्ट? Yep. है ना? अब इस जगह जब हमने कंडीशन लगा दी तो जहां ट्रू होगा वहां फॉल्स आएगा, जहां फॉल्स आएगा वहां ट्रू आएगा. नोट बिल्कुल अपोजिट खेलेगा. अब देखो बेसिकली यहाँ पे तो वैसे भी 70% लेस है, तो 60% यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, जो कि यूजुअली बनता भी, लेकिन हमने अभी कंडीशन उल्टी खेल रहा है आप अगर गौर से देखो तो, क्योंकि रिजेक्ट एम्प्लॉइज हु आर 17 एंड हैव अटेंडेंस बिलो 70%. तो खैर ये अपोजिट है थोड़ा. एक सेकेंड. एंड A2 सेल्स द ओनली टाइम इट रिटर्न्स फॉल्स व्हेन बोथ, अच्छा व्हेन बोथ कंडीशंस आर बैड. मतलब यहाँ पे ये है कि फ्रॉम द सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स भी खराब हो और अटेंडेंस भी बिलो 70% हो, देन इट गोना बी फॉल्स. अंडरस्टूड? अगर एक जगह वो बढ़िया है, लेट्स से अटेंडेंस उसका अच्छा है, राइट, और सेल्स उसकी डाउन है, so somehow it's going to be true and he will be saved. So we will use some other time, not now. We will talk about it more. But इसका सबसे ज्यादा यूज पाइथन में होता है, so I'll explain you in Python. But ये फोर लॉजिक समझ में आ गया? मैंने रिकैप दे दिया आप लोगों को. नो? यस? कंफर्म कर दो. Yes, sir. अब थोड़े से ऐसे फंक्शंस हैं जो बताता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स से एवरेज कैसे निकलता है. अब आप बोलोगे अरे सर मजाक मत करो, एवरेज इज लाइक चुटकी वाला काम. हाउ? आई मीन सर एवरेज टाइप करो, यू विल गेट द एवरेज. आई नो, बट मेरा सवाल फिर भी एवरेज कैसे निकलता है? एनीबॉडी वुड लव टू एक्सप्लेन? हेलो हेलो हेलो. अगर इक्वल टू सम से अगर मेरे को टोटल करना हो तो आई कैन डू, आई नो. बट अगर मेरे पास सम फंक्शन ना हो तो हाउ आई कैन ऐड द मल्टीपल नंबर्स? एनी आइडिया? गाइस, आर यू देयर? No, sir. Okay. Let's say I have 500, 200, 100. मुझे इनका टोटल चाहिए. And I request you that do not use the sum function. मुझे टोटल कैसे मिलेगा? सर प्लस करके कर सकते हैं ना? यही तो पूछा था, और कुछ नहीं पूछा था दोस्त. राइट? तो ये तो पता चल गया आपको, है ना एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. देखो क्लास में स्लो में इसलिए चला रहा हूं so that everybody can understand the facts. But still, if you are confused, feel free to ask. Hello? ये तो समझ रहे हैं. Yes, sir. Okay, so we know sum करते ही we'll get the sum. या हम ऑपरेटर का यूज करेंगे, like we are picking this plus picking this plus picking this. both case are same, right? है ना? अब इनका एवरेज एक तो ये तरीके से निकल जाएगा. We are picking this and we'll get the average. Oh, this figure is average. Let's say, let's take some easy number, 10, 20, 30, 40, 50. सबको पता है 30 is the average. क्यों? एवरेज निकालने का दूसरा तरीका क्या पता है आप लोगों को? Sorry, this is not the function. 10, okay, I'm using this. My bad. 30 is the average. But यहाँ पर कैसे आई एवरेज? Any idea? तरीका क्या होता है एवरेज निकालने का? Like detailed option. Any idea? Sum by number of occurrence. सर कितना है उतना सारा मिला के. Sum, ठीक है. Then we go for count. Count. ये टोटल कितने नंबर है? There are 5 numbers, right? Then what do? इसको इससे डिवाइड करते हैं. So this answer is average. Understood everybody? Yes. Yes, sir. Yes. अभी और भी कुछ है सीखने के लिए. So काउंट भी आपको पता चल गया, काउंट लगा के काउंट निकलेगा. बट काउंट की एक ना बहुत बुरी आदत है. The very bad habit of the count that it only counts the numerical data when you have in cell. Let's say I'm typing A over here, it will not count. Did you see that? Even if I type 0, it will count.
If I do not type anything, that's fine. But if I type 0, fine. But let's say मैंने A डाल दिया, it will not count. It doesn't count ever the alphabet. Clear? Yeah. Everybody? अच्छा, जो न्यू बच्चे हैं, मजा आ रहा है? आ तो रहा है। Yes, sir. आ तो रहा है। अब Yes, मैं sir. राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ कि मैं आपको ये बोलूँ, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ। सो गाइस, मेरी क्लास बोरिंग नहीं होती, आई एम टेलिंग यू। हाँ, कभी कभी थोड़ी सीरियस होती है। व्हेनेवर यू गेट एनी अदर क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। आई एम नॉट द वन जो आपको स्टॉप करेगा या म्यूट करके रखेगा। नो, आई जस्ट वांट टू स्पीक ओनली। नहीं माना, मेरी आवाज थोड़ी अच्छी लगती है मुझे। पहला ऐसा बंदा हूं मैं जो खुद के बारे में बहुत कुछ पसंद है मुझे। ऐसे बहुत सारे सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, बट मेनी टाइम पीपल सेड अबाउट दिस, तो मुझे भी लगने लगा। बट आई एम नॉट माय वॉइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्लास बोरिंग नहीं होनी चाहिए। इफ आई एम नॉट और फिर आप सवाल पूछने में हेजिटेट हो गए। सो डू नॉट एवर थिंक कि कोई और क्या सोचेगा, या ये बोलने की भी जरूरत नहीं है दैट माय क्वेश्चन साउंड सिली टू यू बट आई वांट टू आस्क। डू नॉट थिंक एवर लाइक दिस, क्योंकि आप सभी सेम प्लेटफॉर्म पे हो। The बिल्कुल। question is just a question. It cannot be silly or intelligent ever. Understood? यस सर। Yeah. जैसे planet planet होता है, we are no one to decide which planet is dwarf, जिसको हम बोना बोलते हैं, और which planet is like अमिताभ बच्चन, हम नहीं डिसाइड कर सकते। We are even like ant, ये चींटी बोलते हैं ना, चींटी। पूरे स्पेस में we are like ant। कुछ सोच के देखो। अब यहाँ के साइंटिस्टों ने प्लूटो को बोल दिया डॉर्फ प्लैनेट। डू यू नो अबाउट दिस? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। No, sir. नो, यू डोंट नो? पक्का? और क्यों बोला? अर्थ विल टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट द ऑर्बिट ऑफ द सन। इट विल टेक ऑलमोस्ट 200 अर्थ आवर टू कंप्लीट। सो एक दिन, यानी समझ लो 250 दिन लगते हैं उसको सूरज के पूरे चक्कर लगाने में। डू यू नो दैट? नो नो। हेलो, माइक टेस्टिंग। I was not knowing this. हाँ। I was not knowing this. एज अ ट्रेनर मुझे बहुत कुछ जानना मेरी मजबूरी होती है। So yes, the first recognized dwarf planet, it has thin atmosphere to 5 unknown moons, 5 unknown moons. And दूसरी बात है कि साइंटिस्ट यहाँ इन लाइक अर्थ के साइंटिस्टों ने इसको नाम दिया है। बट डू यू मैन व्हाई आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू? इस प्लैनेट को कोई 1 रुपए का भी फर्क पड़ा है कि इसको कोई बोना बुला रहा है? जस्ट टेल मी दिस। हाँ, एनीबॉडी? हेलो? पढ़ने के लिए जानना भी तो पड़ता है। क्या? फर्क पड़ने के लिए पता भी तो होना चाहिए उसको कि उसको लिए कुछ वो ही बोल रहा है। एग्जैक्टली। तो जैसे फर्क उसको नहीं पड़ता ना, वैसे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब दूसरी बात है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, कि जो भी आप कर रहे हो और जिस लेकिन ये किस टॉपिक पे उठा था मैं वही भूल गया, सॉरी। सो एनीवेज, प्लूटो टेक्स अप्रोक्सीमेट 8 अर्थ ईयर्स। कैन यू सी दिस? सॉरी, 1 साल लगता है हमारे अर्थ को पूरे सन का ऑर्बिट कंप्लीट करने में, करेक्ट? हमारे अर्थ को। एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 248 अर्थ ईयर्स, ऑलमोस्ट 248 साल। वही हुआ ना? So Pluto is very far from the sun with the average distance of 5.9 billion kilometers, 3.7 miles. The farther a planet is from the sun, the larger its orbit path. Obviously, जितना सन से दूर रहेगा उतना इसको टाइम कवर करने में कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। So 1 Pluto year is almost 248 Earth year. इसका मतलब ये है कि अगर आप प्लूटो पे 1 साल बिताते हो तो आप यहाँ के हिसाब से 248 साल के हुए। अंडरस्टूड है ना? तो इसलिए बोला गया है कि हर प्लैनेट पे हमारी एज और हमारा वेट दोनों ही अलग अलग होता है। अंडरस्टूड? यस। क्योंकि स्पेस में टाइम Yes, अलग ही लेवल पे। और इफ यू टॉक अबाउट ब्लैक होल्स, वहां तो टाइम का पूछो ही मत। जब तक आप 1 मिनट भी कंप्लीट करोगे ना, यहाँ 10 साल बीत चुके होंगे ऑलमोस्ट, या उससे ज्यादा। हैव यू सीन दिस मूवी एवरीवन? इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर, यस। Interstellar. हैव यू सीन दिस मूवी? कहाँ गया इंटरस्टेलर? यस। शायद। एनीवेज, हाँ, देखिए देखिए ना, इंटरेस्टिंग है ना? बहुत सही।
एनीवेज विल टॉक अबाउट दोस मूवीज. एवरेज का काम है, obviously एवरेज का काम अभी क्या है वो we will talk about it, but निकलता कैसे that I was telling you. Anyways, sum कैसे, sum equal to sum, and these are easy function to get all of this calculation. So we give this and all thing is good to go. I know that 40,843 is my total calculation. अब मैं sum से भी निकाल सकता हूँ. फाइन, आपको ये टोटल यहाँ पे भी दिख जाएगा. कहाँ पे? अपार्ट फ्रॉम दिस टेबल कैलकुलेशन आप यहाँ पे भी देख सकते हो. कैन यू सी? यस. ठीक है, आगे बताता हूँ. सम इफ सम तो करो अगर मैं कंडीशन एक दूंगा, मतलब सम इफ में देयर इज ओनली वन कंडीशन यू कैन अप्लाई. अंडरस्टूड? कितना कितना कंडीशन? एक कंडीशन. लेट्स से ये तो टोटल है ना, ये पूरी टेबल का डेटा है एंड आई एम गेटिंग 40,843. ये तो पूरा टोटल हुआ, राइट? राइट. लेकिन बॉस ने बोल दिया कि हे बड़ी, कैन यू चेक ओनली लो फैट सेल्स? ये लो फैट के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये दो कैटेगरी मुझे दिख रही है. कैन यू चेक ओनली लो फैट सेल्स? हाँ सर, मैंने फिल्टर लगा दिया. लुक एट दैट, 21,017. यू गोना से स्टूपिड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिल्टर. आई एम जस्ट लुकिंग अ सॉल्यूशन वेयर यू कैन अप्लाई अ फंक्शन. क्योंकि अगर गलती से somebody will delete this function things, let's say, how are you going to check now? No filter at all there. Can you see any filter? नो. नहीं सर. जो ऊपर था अब फिल्टर लगा ही नहीं सकते. कैसे मिलेगा डेटा, बताइए? एनी आइडिया? तो उसके लिए we do use sum if. क्लियर? सम इफ का फंडा क्या है? लेट मी गाइड यू. सम इफ सेज इक्वल टू सम इफ. यहां पे कोई एस नहीं है, सिर्फ इफ है. सो इफ सेज गिव मी द रेंज फ्रॉम वेयर यू वांट टू पिक अ क्राइटेरिया. ठीक है ना? उसके बाद आप दो क्राइटेरिया की स्पेलिंग गलत हो सकती है गाइस, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं. उसके बाद इट विल आस्क यू टू प्रोवाइड द सम रेंज. अंडरस्टूड? यस, नो, मे बी? Yes, sir. लाइक टेस्टिंग. अब यहाँ पे ये फंक्शन तो दे दिया मैंने. कौन सा फंक्शन? दिस फंक्शन. गाइस, आर यू गेटिंग एनी बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम माय एंड? No sir. यू आर क्लियरली ऑडिबल. ओके. सम इफ लगाया, अब ये बोलता है रेंज दो, दे सको लो फैट या रेगुलर. ठीक है, उसके बाद मुझे सम रेंज दे दो. सो दैट सम रेंज विल बी द लास्ट, वो टोटल वाला अमाउंट. मैं करके दिखाता हूं, सो दैट विल बी गुड टू सी, राइट? है ना? जी. सो आई एम टाइपिंग ओवर हियर सम इफ, क्योंकि हम सम तो करना जानते हैं. सम तक ठीक है. अगर सिर्फ गाने में नहीं होता कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, एनीवेज कोई छोड़ता नहीं है. ये रहा रेंज. इट इज आस्किंग व्हाट? कैन यू सी दैट रेंज यहां पे? हेलो? यस. Yes sir. तो अगर मुझे लो फैट का जानना है तो ऑब्वियसली बात है, ये रेंज देके तो कोई फायदा नहीं है ना, है ना? करेक्ट. It's asking me to put a comma. I gave the comma. Fine. What next? Criteria. He was talking about, my boss was talking about the low fat. And you can pick any low fat from here. यहाँ से, doesn't matter. एक तो ये तरीका है. Or you can just type low fat like this. Can you see? Can you see that? Okay. है ना? बस उसमें वो होना चाहिए डेटा में. And then you can provide this. That's it. There we go. 21017. बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब मैं एडिट करके चेक कर रहा हूं तो यहाँ मैंने क्राइटेरिया चूज नहीं किया. आई डिड राइट दैट क्राइटेरिया. क्लियर? यस. Yes. बात समझ में आई? जी. आपकी मर्जी है, आप मैनुअली चूज करो और मैनुअली लिखो, दैट्स अप टू यू. ठीक है, बट इन शॉर्ट क्या हमने मल्टीपल कैटेगरी चूज की और डिड आई चूज ओनली वन कैटेगरी? ओनली वन. ओनली वन, यानी वन रेंज, वन कैटेगरी एंड टोटल सेल्स, राइट? Yes sir. बट व्हाट इफ ही गिव मी मल्टीपल कंडीशन कि यार लो फैट तो दिखाई दो, साथ में सुपरमार्केट वन भी. तो अगर फिल्टर अप्लाई करोगे तो आई नो दैट यू गोना पिक फर्स्ट लो फैट, ओके, देन यू गोना पिक सुपरमार्केट वन, राइट? है ना? कितना सेल है? $13,069 एवरीबॉडी. Yep. अब ये दो कंडीशन लगाए थे मैंने, तो क्या ये फंक्शन में पॉसिबल है? यस. सम इफ नहीं लगेगा इस बार. इफ तो लगेगा, साथ में एस भी आएगा. यू विल हैव टू एस लाइक दिस, यू विल हैव टू ऐड एस. अब यहां पे सम रेंज पहले मांग रहा है वो. कैन यू सी दैट?
हाँ, Yes. Yes, sir. is asking for some range first, then it will say कि criteria जितने देने दो, पहले range फिर criteria, फिर range फिर criteria. Understood the facts? जी. कैसे देना है मैं बताता हूँ. बहुत सिंपल है. I gave the sum range, जैसे इसने मुझे बोला कि total amount बता दो. Okay. Now criteria range 1. Let's say I'm looking for this. ये तो कोई range कॉमा लगाया. यहाँ पे function दिख रहा होगा आपको. Can you see the function on top? Yes, no, maybe. Yes. Then I'm picking the low fat. I can pick any of the low fat. Fine. Comma. दूसरा range ये देना पड़ेगा because I was talking about the supermarket. Then I selected the supermarket 1. That's it. Same amount है कि नहीं है? Correct. Can you see the same amount? Yes, no, maybe. Yes, sir. तो बात समझ में आई कि सम इफ्स के बीच, सम इफ और इफ्स के बीच में क्या फर्क है? Yes, sir. समझ में। Multiple range. Yes, multiple ranges. मल्टीपल रेंज, मल्टीपल क्राइटेरिया, सिंगल रेंज, सिंगल क्राइटेरिया. और जैसे एवरेज सम की तरह निकलता है विद वन फंक्शन, वैसे ही एवरेज इफ और एवरेज इफ्स भी काम करेंगे जैसे सम रेंज, सॉरी सम इफ और सम इफ्स काम कर रहे थे. अंडरस्टूड? ओके, वही फंक्शन होगा इक्वल टू एवरेज इफ और फिर वही रेंज क्राइटेरिया एंड एवरेज रेंज. मतलब जो सम रेंज वी वर गिविंग, सेम सम रेंज आपको उसको देना है, बस नाम बदल गया एवरेज रेंज. अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड Yes, sir. है ना? और फिर इसमें अगर आप एस लगा देते हो, देन अगेन सेम एवरेज रेंज पहले दे दो, रेंज 1 रे क्राइटेरिया 1, रेंज 2 क्राइटेरिया 2. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? करके दिखाओगे तो और अच्छे से आएगा समझ. क्या? करके दिखाओगे तो और अच्छे से समझ अरे आएगा. बाबा, इसमें करने का क्या है बाबा, ऐसा परेशान नहीं करते. ये देखो, ये टोटल एवरेज अमाउंट है. एवरेज कैसे निकलता है मैं बता चुका हूँ. इसका सम और इसका काउंट दोनों मिला के एवरेज, करेक्ट है ना? Yes. अब ये तो चलो एवरेज निकाला मैंने 1945, फाइन. अब एक लॉजिक लगाओ कि अगर मुझे सिर्फ लो फैट का सम नहीं देखना, इसका एवरेज देखना है, तो वही तो फंक्शन है जो सम के लिए किया. सम इफ लगा के अपन देख रहे थे, अभी एवरेज इफ लगाते हैं अपन. सिंपल, रेंज मांग रहा है तो रेंज दे दो, दे दिया, कॉमा लो फैट, कॉमा एवरेज रेंज, दैट्स इट. जैसे सम का किया वैसे इसका है. Same ही मतलब. हाँ, वही तो बोला मैं, सेम है. Got it. बस वर्ड चेंज हो जाता है, सम की जगह एवरेज लग जाता है. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, now let's talk about few more things. जैसे कि count और count if. Count if will let's say over here I do have 10, 20, 30, 40, 50, or let's say 40 only. So count will only numerical columns that I told you. Understood? Like numeric data. There are 5 numbers. Everybody? Yes. No? है ना? यहाँ तक बात समझ में आई? जी. Count if क्या करेगा? Sorry, my bad. I got the hiccups. Count if. Let's say मुझे यहाँ जानना है लो फैट कितनी बार है. Understood? Clear? So I'll type count if. क्या? Count if. इसमें दो ही चीज है, रेंज और क्राइटेरिया, दैट्स इट. तो आई सेलेक्टेड द इंटायर रेंज. ये क्या मांग रहा है देखो, फंक्शन में मांगेगा कैन यू सी क्राइटेरिया. आई जस्ट वांट टू नो लो फैट कितनी बार है. लो फैट 9 टाइम्स. तो मैंने यहाँ पे जाके आईडी चेंज कर दी. मैंने कहा 22 में जाके देखो रेगुलर फैट कितनी बार है, 12 टाइम्स. डिड यू सी हाउ टू गेट एन आइडिया? Yes. मान लो एक ही कंपनी में लेट्स से देयर आर मल्टीपल श्रद्धा, है ना? श्रद्धा सिन्हा, श्रद्धा शारदा, श्रद्धा कुमारी, श्रद्धा मीना, whatever. I just want to see how many Shraddhas are there. Understood? Yes, sir. Understood? So I can get an idea easily. है ना? Understood? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब ये तो काउंट इफ का काम था. अब मुझे ये भी पता करना हो कि श्रद्धा एंड अमित कितनी बार है, तो काउंट इफ्स हो जाएगा बस, जैसे एवरेज इफ्स हुआ, सम इफ्स हुआ. एनीवेज, उसके बाद है काउंट हो गया, काउंट इफ हो गया, काउंट ब्लैंक एंड काउंट ए समझाने दो. So can you see this range? Some of the cells are empty here. Yes. है ना? तो मुझे बस ये जानना है how many cells are empty, how many cells are not empty. So if you want to know empty कितना है, so you will be using count blank. It will only count empty cells. Just give a range and enter. Can you see 3 cells are empty? अगर मैं यहाँ से एक और delete कर दूंगा, there will be 4. If I delete one more, there will be 5. Can you see? Yes. और अगर मुझे ये देखना है how many cells are not empty, क्या? Not empty. Not empty. Not empty. उसके लिए use count A. It's not count A. Many people like pronounce this like this, but it just give the range. It will give you the count how many cells are not empty. वैसे तो in Excel I never check the empty cells like this. Let's say if you get a data
in this manner. Let me show you something interesting. Let's say Netflix. How many of you have the Netflix subscription? Some of you? Yes, no? Yes, I do. या पिकासो से काम चलाते हो? है. चलो, anyways, this is Netflix data set. Okay. अब यहाँ देखो गौर से, there are few empty cells are there, है ना? है ना? But I'm not sure because if I check that how many cells are there, almost 8000 cells है इसमें, 8807. अब मैं एक एक को चेक तो करने बैठूंगा नहीं, काउंट ब्लैंक लगा के. Understood? So in future you will be learning the advanced techniques that is called Power Query Editor, which will give you an idea कि किस कॉलम में कितना % data is missing. Understood? Everybody? Yes. मैं सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूं, बाकी I'll teach you in future. Not exactly that much future, but obviously next week. अब यहाँ पे can you see empty cell 31%? Can you see that empty? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे ये दिखाता है और इसी empty cell को हमें fill up करना होता है. और let's say if more than 50-60% data are missing, then you will have to delete the entire column. यहाँ पे सब कुछ होगा. इस Power Query Editor के powerful जलवे आपको दिखेंगे, but not now. Suspense or suspense. अभी flow के साथ चलते हैं हम लोग. I know curiosity high होती है. So count blank will find the blank spaces. Counter will find the non-empty cells. Then what is median and mode? अब मेरे पास ये 5 नंबर है. Everybody can see that. ना? Yes. Yes, sir. तो 5 नंबर odd होता है कि even होता है, ये बताओ. Odd. Odd. क्यों होता है? Any idea? क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता और इक्वल नहीं 2 निकलता. से divide तो हो सकता है, पर पूरी तरह divide नहीं हो हाँ, सकता. रिमाइंडर बच जाएगा. Oh yes, hell yeah. So basically, if I talk about कि यहाँ पे most middle number क्या है anyways? 5 नंबर है तो साफ दिख जाएगा. मतलब कोई भी odd नंबर होगा तो you will directly get most middle number. अगर आप उसको ascending या descending order में shift करो तो अभी this is in ascending order. Like 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा कुछ. Let's say इसको 20 किया, इसको 30 कर देते हैं. Correct? है ना? So median will be the most middle number. That's it. 30 is the most middle number. Let's say I delete this. Oops. Now do we have 25 here? नहीं ना? लेकिन अब 4 is odd, like even number. जब even number आ जाए तो आप पहले इसको ascending to descending में देखो कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है. 10 is minimum, 40 is maximum. बचे कौन? 30 and 20. Everybody? Yes. अब यहाँ पे तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 20 और 30 राउंड फिगर में क्लियर है कि बीच वाला नंबर 25 होगा. अंडरस्टूड? लेकिन अगर इसकी जगह लेट्स से 25 होता, 23 होता, इस जगह 70, सॉरी, इस जगह लेट्स से 31 होता तो 27. अब कैसे पता चलेगा इनका मिड नंबर वो है? बहुत सिंपल है. आप इस मिड के 2 नंबर को लो, 23 को एंड 31 को. कैन यू सी? हेलो? Yes. Yep. है ना? और इन दोनों नंबर का एवरेज जो होगा ना, दैट विल बी मोस्ट मिडल नंबर. पहले तो आप इनको क्या करोगे? सम करोगे. अंडरस्टूड? कितना है? 54, राइट? और कितने नंबर है? ये 2 नंबर है, राइट? यस, नो? Yes. Yes. तो जस्ट टाइप दिस. क्या आया यहाँ पे? 27. 27. और यहाँ क्या है मेरे पास? 27. एग्जैक्टली. मिड के 2 नंबर का जो एवरेज होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन. दिस इज स्टैटिस्टिकल फंक्शन. ओके? अब अगर आप फॉर्मूलाज में जाओगे यू विल गेट मोर फंक्शंस, बट लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, हम सब कुछ नहीं सीखते क्योंकि हम सीख ही नहीं सकते. हम ऋतिक रोशन नहीं हो सकते. वरना उससे अगर पूछा गया तो ही यूज्ड टू से मैं अपने पापा से सीख के आया हूं, बट आई कांट. राइट? मेरे पापा को इसका एक भी फंक्शन नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अंडरस्टूड एवरीवन? एंड लक और अनलकीली वी डोंट हैव जादू विद अस, जिसका काम धूप से चल जाए, है ना? So Yes. these are many functions. Let's say in your college, in your school time, you did learn sin theta and cos theta, है ना? But did you focus on this? No. हाँ, you were focused on one thing. किसने किसको पीटा? मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बट कॉलेज में, स्कूल में ऐसा होता है, नहीं होता क्या? हम ही पीटते थे. No, yes. Anyways, Yes. but did you ever use sin and cos in your working profile? No. क्या पता गलती से यूज कर लिया हो कि बॉस ने बोला आज sin थीटा यूज करो और टर्मिनेट कर दो किसी एक को, ऐसा कुछ नहीं. नहीं होता ना. एग्जैक्टली. सो देयर आर मेनी फंक्शंस वी डू नॉट यूज, क्योंकि बैंकिंग वालों के लिए भी है, शेयर मार्केट वालों के लिए भी है, एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ डोमेन में, एंड फॉर अस एज वेल, है ना? एवरीबॉडी देखो, लॉजिकल फंक्शंस हम सारे यूज नहीं करते. लैम्डा यू गोना लर्न इन ऑब्वियसली पाइथन. नोट हमने यूज किया है, मैप आप पाइथन में यूज करोगे. देन यू विल बी लर्निंग इफ, फॉल्स, ऐसे बहुत सारे हैं. फाइनेंशियल देयर आर मेनी. बैंकिंग पीपल के लिए लेट्स से लोन वन एंड ऑल, पीएमटी फंक्शंस, देयर आर मेनी.
मैं नहीं, बट जो आपके काम का है इस फील्ड में, आई एम गोइंग टू टीच यू दैट. ओके Okay. एवरीबॉडी, Yes, sir. है ना. अब मीडियन तो आपने सीख लिया कि मोस्ट मिडिल नंबर इज द मीडियन. कम ऑन, इट्स नॉट अ बिग डील. लेट्स से मैं यहाँ पे पहले लिया मैंने 10 एंड आई एम आल्सो यूजिंग 20, देन 10 फिर से, लेट्स सॉरी माय बैड, 10, देन आई एम यूजिंग 30 और मे बी 40. अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा नंबर है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है? 10. 10. एग्जैक्टली. तो मोस्ट अकरिंग नंबर को या मल्टीपल टाइम रिपीटेटिव नंबर जो भी बोलो, उसके लिए वी डू यूज मोड. ओके, लुक एट दैट. ढूंढ दिया इसने. Yep. पर दो फंक्शंस हैं ये, दो फंक्शन इन द सेंस, मान लीजिए कि इस पूरे रेंज में कौन सा एज है जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, यानी सबसे ज्यादा टाइम. मोस्ट अकरिंग नंबर इज कॉल्ड मोड. अंडरस्टूड? मोस्ट अकरिंग नंबर. सो इफ यू आर यूजिंग ओल्डर फंक्शन, दैट इज ओनली मोड, जो कि एक्सेल 2007 में यूज होता था. कैन यू सी दैट येलो सिंबल ओवर देयर? Yep. Yes. इसका मतलब ये है कि ये ओल्डर फंक्शन है. माइक्रोसॉफ्ट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी. क्या? क्योंकि मोड विल ओनली लुक फॉर फर्स्ट मोस्ट रिपीटेटिव अकरिंग नंबर. ठीक है, जो पहले दिख जाए. फिर माइक्रोसॉफ्ट ने गलती सुधारी, दो बनाए. एसएनजीएल मीन सिंगल्स, मल्ट यानी मल्टीपल. तो अगर मुझे एक रिपीटेटिव नंबर ढूंढना हो तो उसके लिए मोड डॉट एसएनजीएल एंड गिव द ब्लडी रेंज. आई एम सॉरी. एंड देन यू विल गेट दिस कि यार सबसे ज्यादा तो रिपीटेटिव 1987 ईयर है, यानी जो जितने भी ज्यादा स्टोर खुले वो 1987. व्हाट इफ आई हैव अनदर ईयर, राइट? व्हाट इफ आई हैव अनदर ईयर? सो वी गॉट मोड डॉट मल्ट. अब अगर कोई भी ईयर मल्टीपल टाइम सेम काउंट के साथ रिपीटेड है तो लुक एट दैट. डिड यू सी दैट? Yep. Yes. हाँ, क्लियर? Yes, sir. आज ये आपकी ये जो जर्नी थी ये वाले फंक्शंस की, दैट वाज कंप्लीटेड. कोई सवाल, कोई शक? देखो, मैं पढ़ाने को भी आगे पढ़ा सकता हूं, बट एक सिचुएशन है, वी लुक कप पढ़ा के बाकी मैं कल पे नहीं छोड़ सकता. क्यों? क्योंकि अगर ये एक फ्लो में इफ यू विल लर्न देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टूड? हेलो, Okay. है ना? तो बेटर है कि हम इसको कल कंप्लीट करेंगे, बट मीन टाइम व्हाट आई कैन डू, आई कैन हेल्प यू विद द लिंक एंड अदर थिंग्स. बट इफ यू गेट एनी क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, इफ यू वांट टू आस्क, फील फ्री टू आस्क. और जो न्यू बंदे हैं उनके लिए मैं ये बता दूं, लेट्स से देयर इज अ वेबसाइट व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट वीक. क्या बताया था मैंने वेबसाइट का नाम? W3 Schools. इफ यू रियली वांट टू डू प्रैक्टिस. अंडरस्टूड एवरीवन? आप यहाँ पे एक्सेल पे जाइए, यू विल फाइंड दैट एक्सेल. कैन यू सी एक्सेल ट्यूटोरियल? है ना? आज हम क्या पढ़ रहे थे? लॉजिकल फंक्शंस, इफ फंक्शंस, राइट? Yes. एवरीवन, यहाँ पे वो भी सब मिल जाएंगे. एक्सेल फंक्शंस, यू गो विद एक्सेल फंक्शंस, यू विल गेट एंड, एवरेज, एवरेज इफ, एवरेज इफ. कैन यू सी कॉनकैट? कैल कॉनकैट तो पहले हो चुका है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस हैं. लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज इफ या एवरेज इफ्स. क्या लिखा हुआ है? पूरी डेफिनेशन है, और ये करता क्या है ये भी बता रखा है इसने. एंड देन इंटायर सिचुएशन, लाइक द फंक्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू. ऑल्सो इट विल गिव यू अ टेबल. आप यहाँ से कॉपी करो. लेट्स से यू डू कॉपी, तो क्या ये एक्सेल में काम करेगा? लेट्स सी. मैंने डेटा कॉपी किया, है ना? लुक एट दैट, इजी. ये Yes. क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है? एवरेज डिफेंस. नो, इन सबका एवरेज डिफेंस. एंड नाउ दैट्स वेरी सिंपल हाउ टू काउंट दिस. ये आपको पूरा स्टेप बताएगा नीचे. यहाँ पे देखो, एवरेज इफ लगाया, इफ्स. उसके बाद आगे ये भी बताएगा कि आपको क्या क्या करना है. अंडरस्टूड दैट ट्यूटोरियल Yes. एवरीबॉडी? Yes. Yes. यहाँ got से it. सारे फंक्शन आप सीख सकते हो. काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड एवरीथिंग. सो इट्स रियली ग्रेट थिंग्स टू डू. आप थोड़ा एक्सप्लोर करो इसको. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगता है कि व्हाटएवर फंक्शन आई डिड टीच यू, यू गोना गो फॉर मोर नॉलेज, देन मेरी बहुत बेकार आवाज में एक यूट्यूब चैनल है. सो आई एम गोइंग टू शेयर विद दैट, लाइक शेयर विद यू गाइस. ये मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों की देखो, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग तो वैसे भी हुई है. यू कैन सी दोस थिंग्स ऑन पोर्टल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. But let's say if you still want to explore this thing, then go to Data Doctor Academy. I hardly have only 100 subscribers. That doesn't matter. But यहाँ पे एक function है, 9 functions. Can you see 9 Excel functions? You're gonna get more knowledge about the different functions. Everybody, are you there? Yes. Yes, sir. हो सकता है internet speed. Let me check. Oh, internet speed is really good. See, यहाँ पे सब दिखेगा. Right? Can you see this? मैं अभी Yes. तक जो बता रहा था या जो भी पुराने 9 फंक्शंस हैं जो इससे पहले वाली क्लास में हुए हैं, यू कैन जस्ट गो देयर एंड यू कैन सी ऑल दोस फंक्शंस. जो सम, इफ, मीन, मीडियन, मोड जो भी मैंने करवाया है वो सारे फंक्शंस भी इसमें हैं. एंड यू कैन नो मोर. लेट्स से इफ यू गेट एनी क्वेश्चन यू कैन आल्सो लीव अ कमेंट ओवर हियर, आई कैन आंसर. और लाइक लेट्स से इफ यू गेट अ क्वेश्चन, जस्ट फाइंड आउट ऑन YouTube बाय द नेम ऑफ डेटा डॉक्टर अकेडमी. कुछ पाइथन के ट्यूटोरियल हैं, कुछ टैबलूज के हैं,
let's say wasting time on manual dates, आपको date कैसे enter करना है, cell reference like my previous topics, concat again the older like topics, and then we do have Python related things जैसे operator सीखना है, operators क्या होते हैं. The 12 the other guys, it will be 33. Now I hope you. So I'm also teaching Python over here. तो कुछ videos डाले हुए हैं, कुछ videos डाले हुए हैं so that you can enjoy those. And apart from this, let me give you this file जिस पे हम आज experiment कर रहे थे. Would you like to have this file? No, yes, maybe, ladies and gentlemen. अब मैं धुरंधर का डायलॉग तो मार नहीं सकता. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. You are ready because you did learn. No, yes. Yes. So मैंने चैट में तो फाइल शेयर कर ही दी है. But apart from this, I'm going to give you my bundle of the data sets or let's say very crazy things. जहां पे आपको एक्सेल, टैब्लू, हर चीज का डेटा मिल जाएगा ऑलमोस्ट. दिस बैकअप नोट्स एंड मैं बता देता हूं इसमें क्या क्या है. But let me share the link first. So I have shared the link. You can bookmark this. आपको यहाँ पे weekend notes मिलेगा. You can just go to weekend notes. You will get this Excel folder. अभी बाकी सब पे भी डिस्कस करेंगे, but for now you will get Excel folder. Can you see day 1 से लेकर day 8 तक a complete book is there. Obviously, I can't teach through a book because whatever I'm teaching you, that everything is there, but in a detail mode. So whenever you want, you can check in detail. पहली चीज, right? दूसरी चीज है that their Excel extra is also interesting. ये week 1 वाली फाइल यहाँ पे भी है. If you go to Excel, statistics are related, Power Query से related, you will find out many things. Anyhow, I'm going to teach you all of this, so don't worry. ठीक है? But उसके अलावा you will get really lot of practice. Clear? Yes, no? कुछ Yes, extra sir. फाइलें हैं which gonna help you. So I've shared this link with you guys. Keep that with you. And let's meet tomorrow if you don't have any question for now. By the same time, same channel with same instructor.